Okay, so hey guys, welcome back to our YouTube channel Hospitality Bus, and I hope you all must be doing really well. And today we have Vaibhav Tiwari with us finally. So I got many queries from not just HBLC student but from my subscribers, from my followers, from my social media, different social media handles, YouTube, Instagram, many other platform as well. कि एक ऐसा कोलैबोरेशन लेके आओ, ऐसे पॉडकास्ट लेके आओ विद समवन हु हैज़ एक्सपर्टीज़ इन एनसीएचएमसीटी जेई, एक्सपर्टीज़ इन एनसीएचएमसीटी के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग. So finally, we have Vaibhav Tiwari with us today. I'll just give a little bit brief about him. जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ. So Vaibhav Tiwari was a student in HBLC batches for 2023 examination. He got All India rank 371. He is currently part of HBLC batches for 2024. He is working with HBLC as an educator. So welcome to Hospitality Bus finally, Vaibhav. First of all, thank you so much for giving your time. जिनको नहीं पता, Vaibhav is currently first year student at IHM Mumbai, and being a student I can say from a very prestigious college, because IHM Mumbai इंडिया के सबसे बेस्ट सबसे टॉप कॉलेजेस में आता है, विच आई हाईली रिकमेंड टू एवरीवन जो भी लोग टारगेट कर रहे हो एनसीएचएम सिटी जेई को. बट अगेन आई विल से कि थैंक यू सो मच Vaibhav फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस. आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. आई हैव लिव्ड इन मुंबई और मुझे पता है कि मुंबई की लाइफ क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से हमें वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मुंबई लोकल्स में जो लोग ट्रैवल करते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग यू मेड टाइम फॉर दिस, यू मेड टाइम फ्रॉम नॉट जस्ट एचपी लर्निंग को बट मेड टाइम फॉर हॉस्पिटैलिटी बस. तो अभी मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपको अपने बारे में जितना भी अगर थोड़ा बहुत कुछ भी शॉर्ट में बोलना है, इंट्रोडक्शन देना है, ताकि हॉस्पिटैलिटी बस की ऑडियंस थोड़ा रिलेट कर पाए, बिकॉज आई नो एचपी लर्निंग को वाले तो रिलेट कर लेंगे. So first of all, thanks a lot for this wonderful welcome, sir. I'm pleased to be here and hello everyone. I am Vaibhav Tiwari. I am currently 18 years old. As sir mentioned, I am currently pursuing BSc in Hotel and Hospitality Administration in Mumbai, in IHM Mumbai, and I am from Bathinda, Punjab. So it is difficult for me to shift from Bathinda, small city. It's not a small city, but yeah, a place at your hometown and then moving to a place with a million of people living so rushed lives. So yeah, life has changed. But I wanted to be in this industry. I wanted to learn. I am passionate enough to communicate to people. So I joined hospitality administration because I was having the same interest in being front office department for the same reason, because I wanted to be the face of the industry. Talking about my journey, it was very good. I appeared for HHNJE, and then I was happy enough to score 371 rank, as I mentioned again. So that's all about me. Okay, so thank you so much Vaibhav for this wonderful introduction. So just tell us little bit कि आपके दिमाग में ये होटल मैनेजमेंट करने का आइडिया कैसे आया, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. और जब आपने सोचा होटल मैनेजमेंट करने के बारे में, तो आपने कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस को सोचा था, एंड इज इट IHM मुंबई जो आपके लिस्ट में था, और कैसे यू एंड अप विद IHM मुंबई. लाइक वी नो लिटिल बिट स्टोरी कि आप एचपी लर्निंग के स्टूडेंट थे, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर टॉकिंग इन रिलेशन टू एचपी लर्निंग को. जस्ट एज अ पर्सन आपका होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट कैसे आया, तो अब वो आप चीज़ बताओ. Okay, so taking you back to the time of 2021 COVID period, I was searching. I was free. My 10th class में था. I was free. I was searching कि भैया आगे क्या करना है. Because everyone used to ask me कि भाई क्या करोगे, and I used to say कि engineering करना. And then I was like नहीं, अब ये चलो झूठ की बातें अब साइड पे रखते हैं. Let's just research about stuff. So I started to research about engineering. That is it truly my passion, or is it truly that something I could do all my life while being happy? And I researched about it. I'm sorry to say, but I am not the kind of guy who would want to sit on laptop work or be in an engineering department. I do not belong there. So I researched about stuff that what could we do after 10, after 12. So this word popped up, hotel management. And that kind of attracted to my mind. So I searched more, I researched a lot. And then I was like, ye karna chahiye. This is good. This is something that I could do. And then I was correlating myself to my dad. My dad is also in such an industry where he has to talk to people. And the way he talks is really good. I am inspired by him. Like, he is in a medical profession. And when I see him talking to doctors, and the respect the doctors give to him is very incredible. That is because he talks in such a way. So I think that I have that in myself. That's why I just wanted to join hotel management, and I appeared for this. Okay, that's again wonderful.
And I will say, I was just actually waiting कि वो part कब आएगा when you will say कि I was searching for hotel management, then I end up watching your video on YouTube on hospitality work. So नहीं have सर, you got so a the video thing like is how? आपका तब चैनल आई थिंक सो स्टार्ट भी नहीं हुआ, 2022 में आपने स्टार्ट की थी। No, no, I And I started was my the channel. first. No, no, I started my channel in 2020. So it was lockdown Oh, time when I sorry sir. completed my it was lockdown time when I completed my graduation BSc. So 2020 में I started my YouTube channel. But actually even I wanted to know. I think I never asked you question. I never asked you this question, Vaibhav. कि how did you find hospitality was in HP Learning को? Like just ऐसे like randomly दिमाग में question आया. नहीं, वही होटल मैनेजमेंट पे सर्च करते करते आई एंडेड अप ऑन यूट्यूब पे फिर आपकी एक आधी वीडियो देखनी स्टार्ट करी। YouTube ने हम लोगों को फिर recommend आई करा. वाज इंस्पायर्ड। Okay. Yes sir, YouTube देखी। Thank you To YouTube. be honest, so I was like कि हाँ, I wanted to know about hospitality management and you were the one, आपकी वो इंस्पिरेशनल वीडियोस की भाई मेरी जर्नी IHM शिमला में, आपकी वो IT की वीडियो की भाई Yeah. मैं सेकंड पार्ट तब शेयर करूँगा जब इतने सब्सक्राइब। I can relate. करो ना शेयर, I want to know about। Okay, Vaibhav. So, thank you so much about all this thing that you have said. It is related to hotel management and your inspiration towards hotel management. I'm really glad कि you have chosen this thing because, like, somehow you can you end up relating hotel management and all these skills with your father. And I think उनके जो भी profession थे उनमें आपने relate करी है सारी चीज़ें. That is something which is really inspiring actually. If I tell about myself, मेरी family में कोई दूर दूर तक hotel management का नहीं है. एंड एक्चुअली इवन मेरे टाइम पे तो बस ये था कि आई वॉज मोर इन टू पब्लिक स्पीकिंग एंड एवरीथिंग एंड मुझे बस लग रहा था कि भाई ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कंपनी इन्वेस्ट करती है तो चलो हम भी कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट. बट या लाइक फ्रॉम द बैकग्राउंड यू आर कमिंग इन, आई थिंक फ्रॉम हैविंग अ फादर हु इज़ डॉक्टर, ठीक है, एंड बचपन से जो एक फैमिली प्रेशर होता है. आर यू सिंगल चाइल्ड वैभव और यू हैव योर लाइक कजिन्स और सिबलिंग्स ऐसे करके? No, I have an elder sibling and she is doing CA, so ये Okay. बताइए कि कितना बड़ा शिफ्ट है So CA आप से लोग सीधा होटल मैनेजमेंट। दोनों के ऊपर कभी प्रेशर नहीं आया डॉक्टर बनने का? आया, Yes, डेफिनेटली आया. no, आई कैन my father is not a doctor, but he is in the medical field. ओके इन द मेडिकल फील्ड. तो उन्होंने कभी मेडिकल फील्ड के लिए वो नहीं करा कि लाइक यू कैन गो टू मेडिकल फील्ड? क्योंकि अगेन मेडिकल फील्ड भी बहुत ग्रो कर रही है. आई थिंक इट्स एक मेडिकल फील्ड, एक एजुकेशन फील्ड, ये लाइक कुछ ऐसी फील्ड है जिनका कभी करियर खत्म नहीं होने वाला है. इट विल ऑलवेज बी देयर. Yes, service industry is always going to be expanding. बट दैट्स नाइट दैट यू हैव जॉइन होटल मैनेजमेंट. और इसी के साथ मैं आपसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जब आपने होटल मैनेजमेंट के बारे में सब सुना, फिर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ऐसा करते हम लोग थोड़े सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं क्योंकि जब आप लोग आपकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे, यू आर गिविंग योर 12th बोर्ड्स एट दैट टाइम, राइट? सो मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज आई थिंक आप लोगों के टाइम का तो डेफिनेटली आई कैन रिलेट विद यू बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट इन एचपी लर्निंग को. बट अगर मैं अपने बारे में भी बताऊँ, जब मैं 2017 में एग्जाम दे रहा था, अप्रैल की बात थी, एंड इट वॉज इकोनॉमिक्स जो मेरा सबसे लास्ट का एग्जाम था. आई थिंक इकोनॉमिक्स ही था और आई थिंक शायद 4-5 दिन के गैप में मेरा एनसीएचएमसीटी का एग्जाम पड़ गया था. 29 अप्रैल या आई डोंट नो उसके आसपास अप्रैल के एंड में पड़ा था. सो फॉर यू माइट बी डिफिकल्ट, मस्ट बी डिफिकल्ट. सो टेल अस समथिंग कि कैसे डिफिकल्ट था एंड हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स. बिकॉज हम लोगों में काफ़ी डिफरेंस है. अभी मैं अपना ज्ञान दूंगा वो 2017 का है और आपने जो एग्जाम दिया वो 2023 में दिया है. सो आपका वाला ज़्यादा रिलेटेबल है. तो टेल अस वैभव कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स निकल के आती है बीइंग समवन जो 12th क्लास में और अपना बोर्ड का एग्जाम दे रहा है ऐसे स्टूडेंट के लिए. So talking about managing time in boards and NCHL, it is difficult. But the thing is हम लोग ये नहीं चीज नोटिस करते कि जो चीज हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं सेम चीज हमारे साथ वाले जो एस्पिरेंट्स है वो भी फेस कर रहे हैं. So it is the same thing that we face. Just that how we manage ourselves is that matters. So what I did was मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम्स की स्टार्टिंग से पहले ही अपना एक बार सारा सिलेबस करे था because I was a part of HPMC batch B1. I was completed with my syllabus and I started to appear for mock tests before even my board started. So I was focusing on my boards. But the thing is, boards की बात करते हैं, I have noted down a few things. कि अब जैसे there is difference between two streams, science and arts and commerce, right? So उन लोगों के पास different तरीके से एक upstand है कि साइंस के बच्चे जो हैं उनका 18 मार्च को लास्ट एग्जाम है if I'm not wrong. तो 18 मार्च के बाद they would have a lot of time to prepare for the exam. Yeah. And similarly arts and commerce के अगर 31st मार्च को खत्म हो रहे हैं तो उनके पास एक एग्जाम के बीच में गैप है. सपोज उनका भी इंग्लिश एग्जाम हो और उनका भी गैप वो चल रहा है. इंग्लिश एग्जाम के बाद नेक्स्ट एग्जाम है अराउंड 20-25 डेज के बाद.
so they could prepare for the NCHM exam in between. So NCHM is not that difficult कि आप उसको time ना दें, 1 or 2 hours is sufficient in a day to, you know. Yes, sir. So that's how you would manage. It's very easy. Don't be scared. You have a lot of time. Even after March, you have 1 month approximately to prepare, and you will do very good in this exam. So that's how I managed. And you were taking HBLC classes. So HBLC के students तो अभी देख ही रहे होंगे. So you can tell me when you were taking classes of HBLC, who was your favorite educator? ठीक है. I okay. जो लोग अभी YouTube पे videos देख रहे हो, I never asked this question to Vaibhav, and this is not fake. ठीक है. And this is not scripted. I'm just asking him randomly. And I really want to know. And वो भी इस तरीके से कि I can record his expressions. Who was your favorite educator at that time? और जो लोग relate नहीं कर पाएंगे उनको at least subject वाइज. और तुम्हारे कॉलेज के थे सारे एजुकेटर्स. Both of them are my seniors. Yes, both of them are no, 3 of them are my seniors. Yeah. All of them were very good teachers. I cannot name one. I wanted. You have to भाई ऐसे डिप्लोमेटिक नहीं होना है इसमें. अभी इंडस्ट्री थोड़ी ज्वाइन करी है. अभी तो ये Yes. So the thing is, I had an interest in logical reasoning, so I was inclined towards Akram sir. Okay. But Yashwardhan sir, Arya ma'am, Akshat sir, they all were very good. वो लाइन वो फॉर्मल लाइन होती है लास्ट में बोलने की. We can relate. But it is only. But I don't know what is the thing with logical reasoning. But जब like ऐसे NCSM के classes भी चालू हो रही थी तो मैंने students को बोला था कि maybe chances are there कि you will start loving ये logical reasoning के classes more. I don't know what is the deal with logical reasoning. लोग सबसे ज़्यादा logical reasoning को relate करते हैं. जीके और करंट अफेयर तो भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या ही मतलब तुम रिलेट करोगे एजुकेटर के साथ. एंड क्वांट में तो सब डूबे हुए होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, मेरी तरह. बचा एक इंग्लिश और एक लॉजिकल रीजनिंग. इंग्लिश में आई थिंक 60 क्वेश्चन होते हैं तो सिलेबस ज़्यादा होता है. बट आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट ठीक है, लाइक इफ दैट इज द केस एंड मे बी दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव ऑप्टेड फॉर टीचिंग लॉजिकल रीजनिंग इन दिस ईयर. एनीवेज, या दैट्स ग्रेट वैभव. हाँ, यू आर सेइंग समथिंग. Yes sir. So the thing is कि English तो आपको पता है ग्रामर आ जाती है. ग्रामर में हम सब थोड़ा zero अंडा टाइप है. And maths zero अंडा. How much marks you got in your HBLC बोल रहा हूँ बार-बार NCHM city examination? English में आपके कितने मार्क्स थे? English में से 60 में से I think around 52, 53 questions were correct. And you are saying zero अंडा. भाई 60 में से in the sense कि grammar is very 60 में से you got 52 questions corrected and you are saying zero अंडा. वाह. And you know you are sounding like one of those you are sounding like one of those front desk, सबसे आगे वाले जो बैठते हैं फ्रंट डेस्क वाले बेंचर्स जो बोलते हैं कि हम तो कुछ करके नहीं आए हैं भाई, और they end up getting like 50-52. मतलब सेम सिचुएशंस ऐसी होती थी. लाइक मेरे लिए इतने मार्क्स आ जाते, मेरे लिए तो पता नहीं कितनी बड़ी बात है. But हाँ, that's great. Maybe that is the reason why I'm while studying I was saying it is very boring. Okay, it's good. And logical reasoning is very boring. Yes. Okay, fine. And logical reasoning is very interesting because वो interesting हो जाता है. Yeah. And the way they teach is okay. That's a very good teacher actually. Okay, if Adharv is watching this video, is this particular session, then Adharv you had done a nice job. Great. Actually he has also got the best educator of the year tag as well last year. तुम लोगों को शायद बताया नहीं गया था, but हाँ, according to the votes and everything जो सर्वे हमने करा था with students. Okay, but anyways हमने HBL लिंक की बहुत बातें कर ली. अब हमने नेक्स्ट बात पे करते हैं वैभव. Yeah, about your college life. So again, this is not something related to particularly IHM Mumbai, but again because you are in IHM Mumbai you can relate. But tell me कि एक इंसान, एक बच्चा जब होटल मैनेजमेंट के बारे में सोचता है and when he or she particularly goes to that कॉलेज, जब उस कॉलेज में एंटर करते हैं एंड डेट टू अपने पूरे ड्रीम के कॉलेज में, लाइक टॉप के कॉलेज में जाना, जो भी तुमने 2-3 कॉलेज सेलेक्ट करे हैं, तो जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सब लाइक किस तरीके की तुम उन चीज़ों को कम्प्लीटली देखते हो अपने सामने कि लाइक वो सच में तुम्हारे साथ हो रही हैं, और क्या हैरानी करने वाली चीज़ें होती है, या फिर कुछ भी जो तुम्हारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट यू वांट टू शेयर विद अस. A new city as well. I'll be very honest. It is shattering for once. It is very much different because हम लोग दो चीजें सोच के आते हैं कि एक तो हम होटल मैनेजमेंट करते जा रहे हैं और एक हमारे दिमाग में चलता है हम कॉलेज जा रहे हैं हॉस्टल लाइफ चाहिए, ठीक है. बट इट इज होटल मैनेजमेंट, यू नीड टू नोटिस. सो होटल मैनेजमेंट की हॉस्टल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ इज वेरी डिफरेंट देन अ रेगुलर कॉलेज, बिकॉज हमारे यहाँ पे व्हेन आई started to come to college, it was the very first day I was thrown out of the class because I was having these
two hairs lying over my Like forehead, this. and ma'am was like कि भाई आपके बाल बहुत बड़े हैं, you need to trim them and you cannot attend this class. And I was like, भाई मैं बठिंडा से इतनी दूर आया Yeah. हूँ पढ़ने, and they are just throwing me out of the class. That was a very bad experience for the first day. And बहुत लोग सोच रहे थे कुकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. That all will be true. You will learn stuff. You will know the grooming standards, how you need to shave properly every day. You have 4 uniforms in a week. हर दिन आपको अलग यूनिफॉर्म पहननी है. You have you need to take proper care of yourself. And but the thing is, it is interesting. Like talking about IHM Mumbai, it's very interesting. We have events here, a lot of events that you will enjoy. Living with your friends. You will find new friends. You will live that life that you desired of. It would be very different, but you will love it. You will really, be happy after a few months, or when you know that अब यही करना है and यही है हम. And then you will be very happy कि हाँ ये मेरे दोस्त हो गए हैं, इन लोगों के साथ ही जीना है, इन लोगों के साथ ही हमको ये सारा अटेंड करना है, फेस्टिविटीज ये वो. It is happy. अब सब लोग अगर क्लास के बाहर जाए तो एक साथ बाहर निकलते हैं, कोई सबकी ग्रुपिंग है. So it's fun. And you will attend a lot of industrial visit जो आप देखना चाहते हो, जिसके बारे में पैशनेट हो. ठीक है, आप लोग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, बेकिंग कॉम्पिटिशंस आएंगे, आप लोग ओडीसीज करोगे, आप लोग बैक एरिया देखोगे, होटल्स देखोगे. It's fun. It's very fun joining hotel management. It's not sad. It's good. I was actually expecting all this, but noted part कि you made, of course you made lot of friends, that's wonderful. But tell me one thing वैभव, जब आप कॉलेज में गए तो मतलब आपको फ्रेंड्स बनाने में लाइक ऐसा कुछ था कि लाइक एचपी लर्निंग को के स्टूडेंट्स वगैरह मिले या क्या था? लाइक जब कॉलेज में गए जान पहचान के बच्चे तो मिले होंगे एचपी लर्निंग को के बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक जो मेरे पास डेटा आया था ना, Yes. उस डेटा के अकॉर्डिंग इट वाज IHM मुंबई जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गए. बिकॉज अगेन बीइंग टॉप मोस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज, तो बच्चों ने चूज़ करा. तो जस्ट थिंकिंग कि मतलब तुम लोगों को ऐसे वहाँ पर जान पहचान के लोग तो काफ़ी मिले होंगे कॉलेज में कि लाइक तुम लोग को ऐसे गैंग अप करके कि लाइक ओके स्टार्टिंग में वी आर फ्रॉम एचपी. नहीं. So the ऐसा कुछ thing नहीं था. is, we came here करना in the चाहिए. college. नहीं, we came here in the college, and the thing is, we made friends. We were very much eager to make new friends and start living this life. And after making them friends, उसके बाद पता चला कि ये भी SPLC का. तो like, ओ तू भी SPLC उसके से बाद nice. वाह. Same thing I tell each and every student कि भाई अपना कैमरा ओपन करके रख लो so that people can recognize you. If you're not opening Yes. your camera, किसी को कैसे पता चलेगा? Even there are times when I am not able to understand कि अगर कोई स्टूडेंट दिख जाए, when I was in IHM पूछा कि लाइक कोई दिख गया एंड सर मैं HPLC से, लाइक भाई मैं तो तुम्हें कभी नहीं देखा क्लास में. But yeah, that's great actually. Okay वैभव. Okay, so next question for you. ठीक है. So we know कि you have been through NCHM City, you are teaching with HB, like you are being part of HBLC as an educator and teaching logical reasoning here. All India rank 371, got your dream college. अभी what do you think वैभव कि अगर किसी स्टूडेंट को NCHM City JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, what is the best strategy for any student to prepare for NCHM City JEE? So the basic strategy now being serious है कि अब हमारे पास अराउंड 2 या 3 महीने रह गए हैं, and उसमें भी आप लोग के पास 2 महीने तो बोर्ड्स में चले जाएंगे. We are assuming you have 1 month left. So in that 1 month, if you have not started, we are taking it as कि आप लोगों ने अभी तक start ही नहीं किया. So in that month, you should have your book Arihant with you. Arihant की book खरीदो if you don't have, and start studying from that, because it is one book जिसमें से आपको questions आते हैं, generally आते हैं, and उस book को आपने किया है, so you will be able to solve 99% of the paper. 1% ये होगा जो नहीं आता होगा या बाहर से. So buy that book, and after that start solving start doing the topics. First of all, English को पकड़ो and complete the topic and remove it from your book once. Then logical reasoning करो, complete कर, खत्म कर. Yeah. In around 10 to 15 days, you need to complete the topics. After that, practice more samples. Be confident in the topics. एक बार आप अच्छे से करो topics को, ठीक है, आपको पता लग जाएगा which is important, which is not, and then appear for previous year papers or the mock test that you have online. And then be confident enough, go for the paper, छोड़ देना अगर आपने ये सब किया. It's very easy. And the thing is, जितना आप पढ़ रहे हो आपका opponent भी उतना ही पढ़ रहा है, और जितना मुश्किल पेपर आएगा आपके opponent के लिए भी मुश्किल होगा, जितना easy पेपर आएगा आपके लिए भी easy होगा. So the thing is, आपके अगर मान लो 500 नंबर आ रहे हैं और आपने बहुत पढ़ाई की थी और आपका बेस्ट है वो, तो आपका रैंक टॉप 100 में भी जा सकता है. और अगर पेपर बहुत easy है और आपके 700 नंबर है तो भी आपको टॉप 100 में नहीं रहेगा.
सो इट्स लाइक दैट, पेपर की डिफिकल्टी मैटर करती है, बट दैट इज कि आप सबके लिए डिफिकल्ट हो। यू नो व्हाट, इफ गिवन अ चॉइस आई विल चूज कि पेपर डिफिकल्ट आए। मतलब मुझे पता है कि मैं तो वैसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं डूब रहा हूँ तो सब डूबो, मैं अकेला क्यों डूबू भाई। सब नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वन थिंग व्हिच आई विल चूज। बट या, आई थिंक बिल्कुल सही आपने बोला। एंड आई थिंक इसमें एक चीज़ हो रहा है, आई थिंक शायद प्रैक्टिस एंड, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, ठीक है, मैंने तो एग्जाम 2017 में दिया था, यू गाइस आर गिविंग दिस एग्जाम रिसेंटली, तो तुम लोग थोड़ा और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और आई थिंक तुम लोग जो अभी नॉट जस्ट एस बी लर्निंग के स्टूडेंट, बट दोस्त जो अभी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं एंड सारी चीज़ें कर, आई थिंक तुम लोगों के पास बहुत सारे डेटा है कि होटल मैनेजमेंट क्या है, तुम लोगों ने रिसर्च करे। मेरे को कुछ नहीं पता था, मुझको तो मेरे टाइम पे ये पता था कि एक शेफ़ होता है वो खाना बनाता है, एंड नॉट इवन फ्रंट ऑफिस, बट एक पता था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक जॉब होती है जहाँ पर लाइक कोट पैंट पहन कर काम होता है। तो वो था कि कोट पैंट पहनने वाला काम होता है वो कर लेंगे। इवन लाइक किचन में इतना ज़्यादा वो नहीं था, बट हाँ लाइक अभी बच्चों के पास बहुत ज़्यादा डेटा है फ्रॉम यूट्यूब एंड एवरीवेयर, तो आई थिंक दे कैन प्रैक्टिस एंड उस हिसाब से वो अपना सारा कुछ कर सकते हैं, नॉट जस्ट विद कोचिंग, बट अगर सेल्फ प्रिपरेशन भी करना है तो वो भी उनके पास लाइक बहुत सारे तरीके हैं करने के। सो या, थैंक यू वैभव। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस मेन पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो पूरी वीडियो का हमारा सबसे मेन पॉइंट आने वाला है, एंड दैट इज़ कि ऑफ कोर्स ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं वैभव से भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन इज कि स्पेसिफिकली हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसका आंसर कोई ऐसा होगा जिसे सुन के तुम लोग लॉजिकल रीजनिंग को पूरे मार्क्स लेके आ जाओगे। टॉप कर जनरल दोगे। जनरल क्वेश्चन, जनरल आंसर होने वाला है, बट स्टिल वैभव, बिकॉज सी हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट फॉर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, आपके कितने मार्क्स आए थे 2023 में? सर 28 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे नॉर्मल के। 30 में से 28 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे थे? यस और यस, कितने? 2 क्वेश्चंस आई डिड नॉट अटेम्प्ट। ओके, बट आपके मार्क्स कितने आए थे? 28 into 4, that is around 112, I think. Yeah, 112 marks I had out of 120. तो मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है। 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक थे, मैं ये पूछ रहा हूँ बस, लाइक रफली। 28 सर, अच्छा 28 क्वेश्चन अच्छा, ही सही 28 ही ठीक थे? जी, अगर ओके 28 अटेम्प्ट किया हो सकती। ओके, दैट्स ग्रेट, बिकॉज अगेन अगर 30 में से आपके 28 क्वेश्चन ठीक है तो फिर इस क्वेश्चन का डेफिनेटली आप आंसर अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। एंड एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछना चाहिए था, मैंने बस टेकिंग इंटरव्यू लॉजिकल रीजनिंग एजुकेटर, बट ठीक है मैंने अभी पूछ लिया। सो वैभव, टेल मी कि बीइंग अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनसीएसएम सिटी जेईई, एंड उसको ऐसे स्टूडेंट को, ही या शी जो भी है, उसको लॉजिकल रीजनिंग में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? लाइक ऐसा क्या है किस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के, बिकॉज सी एज समवन who has appeared, definitely appeared for NCSM City JEE, and who is organizing all these classes and everything for NCSM City JEE aspirants। मैंने कभी अरिहंत की बुक नहीं खरीदी, मैंने आज तक कभी अरिहंत का सिलेबस नहीं देखा है, ठीक है। मैं बता दूँ तुम लोगों को, ये सच बात है, मैंने आज तक कभी अरिहंत की बुक, मेरे पास एक सिंगल नहीं है। एजुकेटर्स के पास सबके पास बुक होती है, मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट एजुकेटर्स का आइडिया, सो आई एम आस्किंग वैभव कि वैभव आपके हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग में बच्चे को क्या, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कंसिडरिंग जो भी सारा सिलेबस है, तो वो आप प्लीज़ बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सर से बिल्कुल इंस्पायर मत होना, एनसीएचएम अरिहंत वाली बुक प्लीज खरीद लो जाके, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग करना है हमको, उसी बुक Yeah. से करना है क्योंकि उस बुक में सब कुछ दिया। We're talking about logical reasoning. It is, you all know that 30 questions after 200 आते हैं, and 30 question is a small part, but the thing is it is very much small. क्यों? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, लाइक टॉकिंग अबाउट इंग्लिश में क्या होता है कि यू आइदर नो द क्वेश्चन और यू आर नॉट श्योर कि भाई आपका क्वेश्चन सही होगा या नहीं। सेम अबाउट जीके, सेम अबाउट मैथ्स, बट द थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो आंसर आएगा, यू आर वेरी मच श्योर कि आप पे पक्का सही है, और यू आर श्योर कि आप पे नहीं आता। सो इट इज वेरी मच इजी टू डिटरमाइन कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं। सो इट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट दीस 30 क्वेश्चंस, एंड इट इज वेरी इजी टू गेट 25 आउट ऑफ 30 राइट। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक कांसेप्ट्स पे होते हैं। अगर हमने अरिहंत की बुक से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, टॉपिक्स लाइक सेटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंसेस, ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा बस आपका ब्रेन वर्क करना स्टार्ट करेगा। व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, you will know how to achieve that goal and how to solve the questions. So after practicing only you can achieve 25 questions at least आप लोग कर लोगे। अब मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे, उनको 28 आते थे। 2 क्वेश्चंस थे जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजंस वाले थे, जो आप नहीं गेस कर सकते, जस्ट लाइक इंग्लिश ही वो क्वेश्चन आते लॉजिकल रीजनिंग में। बट या, एज द नेम लॉजिकल रीजनिंग सजेस्ट, वेरी लॉजिकल, वेरी इजी, so you can easily score good marks in logical reasoning। और अगर आप लोग HPLC के स्टूडेंट्स होने वाले हो तो मैं आप लोग को बेसिक कराने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड आई होप कि आप सबके एटलीस्ट
25 क्वेश्चंस तो सही हो होप सो बाकी दैट्स ऑल सर दैट्स ग्रेट। मैं पूछना चाहूँगा बाबा, बीइंग अ स्टूडेंट, नॉट नॉट जस्ट अ स्टूडेंट बट एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ एनसीएम सिटी जी एज वेल, यू हैव बीन एन एस्पिरेंट। तो उसके बेस पे व्हाट डू यू थिंक कि ओवरऑल अगर लेके चले तो स्टूडेंट्स को किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, और ओवरऑल अगर लेके चले आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनसीएम सिटी जेई 2024? So talking about कि क्या ध्यान देना चाहिए, इट्स वेरी इजी एग्जाम, तो उससे थोड़ा डरो मत, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, और पेपर की प्रिपरेशन अगर नहीं हो रही है, नहीं कर पा रहे हो, तो अपने अंदर एक पैशन लाओ। अगर आप लोग शेफ बनना चाहते हो तो सोचो कि ये एग्जाम ही आपका डिफाइन करेगा, कि भाई डिटरमाइन करेगा कि भाई आप लोग अच्छे आईएचएम में पढ़ने वाले हो, अच्छे शेफ से सीखने वाले हो या नहीं सीखने वाले। अगर आप लोग अच्छे से एग्जाम नहीं देते हो so you will end up wasting your year or either being in an IHM where you don't learn stuff, and it is very important to learn things. I am in IHM Mumbai and the experience is very good. Our teacher chef Ankit Pillai is very good and I would want people to learn from wonderful chefs like him. आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज तभी मिलेंगी जब आप अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, और अच्छे कॉलेजेस में कैसे जाओगे, अपने एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करने के लिए। सो आप अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, आप लोग ओटीसीज करोगे, आप लोग होटल का बैक एरिया देखोगे, आप लोग होटल में मेन किचन में काम करोगे, प्रॉन्स के साथ रेवियोलीज बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करोगे, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग अच्छे से क्लियर करोगे। सो प्लीज अपना ये लास्ट का एक मंथ, अभी बोर्ड्स दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बोर्ड्स के बाद अपना लास्ट का एक मंथ अच्छे से ईमानदारी से प्लीज पेपर की प्रिपरेशन कर लेना। If you are not able to prepare, search for YouTube. If you don't want to spend your money, do anything. You have a lot of lectures on each and every topic. Just do it. Just spend your time in investing yourself. Do not waste your time. It is a time when you will decide, which will decide your future. So all the best everyone, and I hope you will be in the top IHMs, and I hope to see everyone here in IHM Mumbai and the IHM Plus obviously if you want to go. So all the best everyone. Thanks a lot for everything. This was my time. Thanks a lot for having me, Shubh sir. Thank you so much, Vaibhav. And maybe not just IHM Mumbai also, but maybe other colleges जो इतने सारे हैं, because there are many Yes. students who may opt for Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Chennai, like बहुत सारे ऐसे colleges हैं, चंडीगढ़, लखनऊ वगैरह. But anyways, yeah, thank you so much. It was really fun having interaction with you. Hope कि ऑडियंस ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट करा हो, समझ में आया हो उन्हें जो भी हमने अभी तक बोला है, जो भी ये सारा डिस्कशन हुआ है। ओके, सो नाउ दिस इज़ समथिंग फॉर ऑडियंस। अगर आपको ये हमारा कोलैबोरेशन, हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन नो कि आपको ये अच्छा लगा, और ऐसे फ्यूचर में और भी तरीके के हम लोग आपके लिए सेशंस लेके आ पाए, बिकॉज हम प्लानिंग सेशंस नॉट जस्ट फॉर एनसीएम सिटी जेई बट फॉर अदर टॉपिक्स एज वेल दैट आर related to hotel management. तो उसमें maybe we can talk about front office, we can talk about F&B with someone who has specialties in that particular area. तो उनके साथ हम लोग ऐसे conversation कर सकते हैं. So again, thank you so much Baba for this, and thank you so much to all the audience, to all the people, subscriber, followers who have been watching all this content, and especially this video अभी तक अगर आप end तक देख रहे हो. So thank you so much for watching and have a nice day. Bye bye. Also, I wanted to add something. Yeah. wanted to add something. Definitely. I wanted to thank you. I want audience to like this video for Shubh sir, because I wanted to thank him कि आप लोग remembering my journey 2021 में I started up searching for videos and there were very less videos on YouTube. But over the time, sir ने बहुत सारी videos बनाई है, and he has made a whole sea of knowledge for us, for hotel management aspirants, which I want to thank you about. And it was easier for me to be in this industry after watching those videos, after वो videos देख के inspire होते हो आप, आपके अंदर passion आता है, आप motivate होते हो सब कुछ ज्वाइन करने के लिए. So thanks a lot sir for doing that, and thanks a lot for giving me such a good wishes, and thank you for having me sir. Thank you so much Vaibhav, thank you for this lovely feedback, and again thank you so much to the audience, and मिलते हैं मेरी next video में, तब तक के लिए thanks for watching and have a nice day. Bye bye, take care.